السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کے حدیث مبارکہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تھا کہ اس ہاتھ کی انگلی میں بچھو نے کاٹ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاپوش مبارک کے ذریعہ اس بچھو کو مار ڈالا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، یا یہ فرمایا کہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اور دونوں کو ایک برتن میں گھول دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو جو برتن میں تھی یعنی پانی اور نمک کو انگلی کے اس حصے پر ڈالتے جاتے تھے جہاں بچھو کاٹا تھا اور انگلی کو ملتے جاتے تھے. نیز قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے. ان دونوں روایتوں کو بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 باتوں کے لیے پیدا کیا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو آسمانوں کی زینت بنایا، اور دوسرے شیاطین و جنات کو مارنے کے لیے، اور تیسرے علامات کے لیے کہ لوگ ان کے ذریعہ جنگل و دریا میں اپنا راستہ پا سکیں. لہٰذا جس شخص نے ان ستاروں میں ان 3 باتوں کے سوا اور کوئی غرض بیان کی تو اس نے خطا کی، اپنا حصہ ضائع کیا، اور پھر اس چیز میں تکلف کیا جس کو وہ نہیں جانتا. یعنی آسمان کی چیزوں کے بارے میں جو حقوق ہیں ان کا علم قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے حاصل ہونا ممکن نہیں. اور جب قرآن و سنت میں ستاروں کی غرض ان 3 باتوں کے علاوہ اور کوئی بیان نہیں کی گئی ہے تو مذکورہ باتوں کے علاوہ کوئی اور غرض بیان کرنا ایسی بات کا بیان کرنا ہے جس کا معلوم ہونا متصور ہی نہیں. اس روایت کو بخاری نے بغیر سند کے نقل کیا ہے، اور رزین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور اس چیز میں تکلف کیا یعنی اس چیز کو جاننے کا دعویٰ کیا جس کا اس کو علم نہیں ہے، اور اس چیز میں تکلف کیا جس کے علم سے انبیاء اور فرشتے عاجز رہے ہیں. ربی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے ستارے میں نہ تو کسی کی زندگی یعنی پیدائش مقرر کی ہے، نہ کسی کا رزق یعنی مال و جا وغیرہ، اور نہ کسی کی موت. اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کہن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی افطرا پردازی کرتے ہیں، اور ستاروں کے تو غروب ہونے کو کسی واقعہ و حادثہ کی علت قرار دیتے ہیں. تشریح: اپنا حصہ ضائع کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح لا یعنی باتوں اور بیکار امور میں مبتلا کیا کہ جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے اور نہ آخرت میں حاصل ہونے والا ہے. اس طرح اس نے گویا اپنی عمر عزیز کا قیمتی حصہ گنوایا. آغاز سے قبل ایک نظر آتی اہم سرخیاں. بودھن میں 80 روز سے لاپتہ نوجوان کی موت کے خاکیوں کو خصوصی ٹاسک فورس کے ذریعے گرفتار کیا جائے گا. مقتول کے افراد خاندان کو سی پی کے ناگراجن کا تحفظ. سافٹ ویئر کمیونیکیشن اسکلز کے مطابق دیگر فاؤنڈیشن سنستھا کا انعقاد. فاؤنڈر کو سی پی کی خاتون پولیس عملے میں شعور بیداری. طالبات کے بہتر مستقبل کے لیے سرکاری جونیئر کالجز میں ایم سیٹ و نیٹ کی خصوصی کوچنگ دی جا رہی. طلبہ استفادہ حاصل کرے. ضلع بورڈ عہدیدار رگھو راج. درگاہ حضرت کمار شاہ بیابانی المعروف کنٹیشور کے سالانہ عرس کا 14 دسمبر سے آغاز. تمام تر تیاریاں مکمل. زیادہ سے زیادہ فیوز حاصل کریں. اب خبر
खबरें तफसील से। श्रीकांत की मौत के लिए खुसूसी टास्क फोर्स के जरिए खातियों को गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो जो भी हो, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। श्रीकांत के खानदान को सीपी के आर नागराजू का तयखुन। बोधन मंडल के कंदगांव का रहने वाला 19 साला श्रीकांत की मशकूक तौर पर मौत हो जाने से इसके दोस्त अहबाब खानदान वालों ने कल बोधन शाहराह पर जबरदस्त धरना दिया और पुलिस की जानिब से एक तरफा होने का इल्जाम आयद करते हुए श्रीकांत के खानदान को इंसाफ दिलाने की मांग की। इस वाक़ये को सीपी के आर नागराजू ने बोधन पुलिस स्टेशन एसीपी के हमरा पहुंचकर सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनकार करते हुए बताया कि 23 सितंबर को इनके लड़के के इश्क को लेकर 5 अफराद इनके घर पहुंचकर डरा धमकाते हुए इनके बेटे को जान से मारने की धमकी दे गए। इस दिन से इनका लड़का लापता है, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। मिसिंग केस दर्ज करते हुए एसीपी और इनके अमले ने छानबीन शुरू कर दी थी। फिर भी खानदान वालों ने इस छानबीन से मुतमईन ना होते हुए सीपी के आर नागराजू से मुलाकात करके तफसीली बात को सीपी के इल्म में लाया गया। तभी खुसूसी सीसीटीवी के जरिए मशकूक अफराद से पूछताछ की गई और ड्रोन कैमरे के जरिए भी छानबीन की गई, मगर कोई हल ना मिला। इतवार की रात मिली इत्तला के मुताबिक मौके हादसा पहुंचकर नामालूम झाड़ से लड़की नाश की शनाख्त करते हुए तहकीकात शुरू कर दिया गया। सीपी के आर नागराजू ने खुसूसी टास्क फोर्स टीम के जरिए तहकीकात करने का श्रीकांत के खानदान को तयखुन दिया और जल्द ही खातियों को पकड़ते हुए मसले की इक्सुई का तयखुन दिया। ఆ యొక్క బాడీని చేయాలంటే ఇప్పుడు ఆ యొక్క సరైన మరణ కారణం తెలియాలంటే తప్పనిసరిగా మనం ఆ యొక్క బాడీని ఫోరెన్సిక్ ద్వారానే మనకు మరణ వివరాలు తెలుస్తాయి. ఎందుకంటే అది టోటల్గా మెడికల్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మీదనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ యొక్క కేసును తప్పనిసరిగా నిన్న టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ తర్వాత ఈ అనుమానాస్పదంగా ఉంది మరణం కాబట్టి మా యొక్క పోలీస్ సిబ్బంది పైన వారికి నమ్మకం లేకపోవడం దురదృష్టకరం. వారిని ఎంఆర్ఓ ద్వారా ఆర్డీఓ కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఎంఆర్ఓ టీం కూడా పంపించడం జరిగింది. అయినా కూడా నిన్న వారు సహకరించకపోవడం బాధాకరం. ఎందుకంటే సహజంగా అంత పెద్ద కొడుకు చనిపోవడం బాధాకరం. వారికి మేము కూడా బాధపడుతున్నాం వారికి. కానీ ఎవరు కూడా ఈ లోటు తీర్చలేదు. కానీ మేము తప్పనిసరిగా వారికి న్యాయం చేసే దిశగా వెళ్తామని మీకు హామీ ఇస్తున్నా. తప్పనిసరిగా ఇందులో ఎలాంటి ప్రమేయం లేకుండా నా యొక్క స్పెషల్ టీంని పెట్టి డీసీపీ అరవింద్ ఆధ్వర్యంలో ప్లస్ ఏసీపీ రమేష్ ఆధ్వర్యంలో సిసిఎస్ ఏసీపీ అండ్ వై రాజశేఖర్ టీం ఫామ్ చేసిన ఆల్రెడీ. ఎందుకంటే మేము మొన్న లాస్ట్ మంత్ నుండి ఆ అబ్బాయి కోసం వెతకడం, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాడు, ఈవెన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ గ్యాదర్ చేయడం, ఏమైనా మెసేజ్లు వచ్చినాయని చూడడం, అన్ని ఫోన్లు కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు నిఘా పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనకి ఏది దొరికినా కూడా టెక్నికల్ బేసిస్, అంటే ఆ అబ్బాయి దగ్గర ఫోన్ ఉండే, ఇప్పుడు అక్కడ కానీ మనకు ఫోన్ దొరికితే దాన్ని రిట్రీవ్ చేసి అతన్ని ఎవరైనా లాస్ట్ కాల్ ఎవరితో మాట్లాడాడు, ఎవరైనా బెదిరించారా, లేకుంటే ఏమన్నా అతను ఏమైనా వాయిస్ రికార్డ్ చేశాడా, లేకుంటే ఎలాంటి అయినా కూడా ఏమైనా ఫోటోలు దిగాడా అనేది మనకు ఆ ఫోన్ కానీ మనకు అతని దగ్గర ఉన్న ఫోన్ దొరికితే టోటల్గా ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ వాళ్ళ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ద్వారానే దీన్ని ఈ యొక్క మరణాన్ని మనం నిర్ధారించగలుగుతాం. దాన్ని బట్టి మేము ముందుకు వెళ్తామని మీకు తెలియజేస్తున్నాం. తప్పనిసరిగా ఇందులో ఎలాంటి వారైనా కూడా వదిలే ప్రసక్తి లేదు. వారు ఎవరైతే వ్యక్తపరుస్తున్నారో అనుమానం, అది కానీ ప్రూవ్ అయితే 100% వారిని అరెస్ట్ చేయడం వెనకాడమని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. सरकारी जूनियर कॉलेजों में तलबा तालिबात के लिए एमसेट नीट की खुसूसी कोचिंग दी जा रही है। तलबा इस मुफ्त कोचिंग से मुस्तफीद होते हुए अच्छे रैंक लाने की कोशिश करें। जिला इंटर बोर्ड ओहदेदार रघुराज का बयान। निजामाबाद गवर्नमेंट तालिबात के जूनियर कॉलेज में साइंस तलबा को एमसेट नीट के इम्तिहानात में अच्छे रैंक लाने के मकसद से खुसूसी क्लासेस का इनेकाद किया गया। जिला इंटरमीडिएट ओहदेदार रघुराज का बयान। तलबा के बेहतर मुस्तकबिल को लेकर ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मंगल के दिन इन्होंने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज तालिबात का मुआयना किया। कॉलेज प्रिंसिपल नुसरत जहां और तमाम स्टाफ से इन्होंने तालीमी, साइंस, आर्ट्स, वोकेशनल तालीम के मुताबिक मालूमात हासिल की और बताया कि इंटर तालीमी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक इस महीने की आखिर तक तमाम सिलेबस तकमील करते हुए 1 जनवरी से एमसेट नीट इम्तिहानात के लिए तलबा को तदरीस दिए जाने का मशवरा दिया। खुसूसी क्लासेस के जरिए नीट एमसेट में रैंक हासिल करने के काबिल बनाने का मशवरा दिया। हर तालिबे इल्म पर खुसूसी तवज्जो देते हुए सुबह शाम हर मजमून पर उबूर हासिल करने की ट्रेनिंग दी जाए। तलबा के लिए प्रिंसिपल की जेरे निगरानी हर सहूलत मुहैया की जाएगी।
इसलिए हर तालिबे इल्म को इस मौके से मुस्तफीद होने का मशवरा दिया और हर तलबा को फीस रीअम्बर्समेंट की सहूलत फ्राहम की जाएगी। इस मौके पर स्टाफ लावण्या, शैलजा, इफत, राजेश्वर व दीगर भी मौजूद थे। खातून पुलिस अमला अपने घरों की जिम्मेदारियों के साथ मुलाजिमत, दबाव जैसे कई मसाइल को हल करने में सब्र व तहम्मुल से काम लेने का दीगर फाउंडेशन सदर रोहिणी नायडू का खातून पुलिस अमला से शौर बेदारी के जरिए वाकफियत। शहर के नागाराम स्टेडियम में पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू के ताबन से दीगल फाउंडेशन संस्था की फाउंडर रोहिणी नायडू की क़ियादत में महिला पुलिस ओहदेदारों को सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के मुतालिक शौर बेदारी लाने के लिए वर्कशॉप प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस वर्कशॉप में निजामाबाद, बोधन, आरमूर, रिजरू शोबा महिला पुलिस स्टाफ ने हिस्सा लिया। महिला पुलिस को जाती समाजी हालात के मुतालिक सीपी के.आर. नागराजू, रोहिणी नायडू ने शौर बेदारी लाई। इस वर्कशॉप से मुस्तफीद होने का सीपी के.आर. नागराजू ने मशवरा दिया। दीगर फाउंडेशन सदर रोहिणी ने बात करते बताया कि खवातीन पुलिस अपनी ड्यूटी में मसरूफ रहती है, जिससे इनकी जरूरत की अशिया को घर को देखने में भी सही वक्त नहीं मिलता। खवातीन की परेशानी को दूर करने के लिए वुमन हेल्थ स्टंट्स बुलमेन स्टेशन के मुतालिक तफसीली आगाही लाई। खानदानी दबाव, काम का दबाव को किस तरह हल किए जाने के मुतालिक तफसीलात बताई और खवातीन के मसाइल के मुतालिक तफसीली आगाही दी। दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी अलमारूफ कंटेश्वर के 2 रोजा उर्सु मुबारक का कल बरोज चारशुंबा से होगा आगाज। सज्जादा नशीन अलहाज अब्दुल खादर का बयान, ज्यादा से ज्यादा शिरकत व फ्यूज करने की अपील। जिला व शहर निजामाबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह कंटेश्वर अलमारूफ सोफी बुजुर्ग कमाल शाह बियाबानी का 2 रोजा उर्सु शरीफ मनाया जा रहा। हर साल की तरह अमसाल भी 14 दिसंबर बरोज चारशुंबे को जुलूस संदल माली का एहतमाम हस्बे रिवायत बामकान सज्जादा नशीन अलहाज अब्दुल खादिर अहमद साहब तक दरगाह शरीफ बाद नमाज असर निकाला जाएगा और बाद नमाज इशा महफिल समा का एहतमाम किया जा रहा। बाद 15 दिसंबर बरोज जुमेरात बाद नमाज फज्र खत्मुल कुरान और बाद नमाज मगरिब चिरागां का एहतमाम किया जाएगा और 16 दिसंबर बरोज जुमा बाद नमाज असर इख्तितामी तकरीब उर्स शरीफ फातिहा ख्वानी की महफिल मुनक़िद होगी। सज्जादा नशीन अलहाज अब्दुल खादर अलमारूफ अहमद खादरी चिश्ती ने आप तमाम से रोजा उर्स शरीफ की तकारीबात में शिरकत करते हुए फ्यूज व बरकत से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। बीडी मजदूरों को हुकूमत बिना किसी शर्त के पेंशन अदा करे, सीएम केसीआर अपने वादों को पूरा करे। तेलंगाना बीडी प्रगतिशीला बीडी वर्कर्स यूनियन का मुतालिबा। दरपली मंडल मुस्तकल में तेलंगाना प्रगतिशीला बीडी वर्कर्स यूनियन की क़ियादत में बीडी वर्कर्स ने रैली का इनेकाद किया। मुकामी गांधी चौक से मंडल रेवेन्यू ऑफिस तक ये रैली निकाली और बाद अज़ां तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर बीडी वर्कर्स प्रगतिशीला यूनियन जिला सदर बी सूर्य शिवाजी ने बात करते हुए बताया कि 2014 के इंतखाबात में सीएम केसीआर ने बीडी मजदूरों से वादा किया था कि इन्हें पेंशन दिलाते हुए इस तकलीफदा काम से राहत देंगे, मगर सीएम केसीआर इन बीडी मजदूरों को पूरी तरह भुला बैठे और तेलंगाना प्रगतिशीला बीडी वर्कर्स की बड़ी जद्दोजहद के बाद रियासत भर में बड़े पैमाने पर किए गए एहतजाजी प्रोग्रामों के अवज़ 2015 में पेंशन देना शुरू किया। आज भी बहुत से बीडी मजदूरों को पेंशन नहीं दिया जा रहा। इस मौके पर इन्होंने बीडी मजदूरों को गैर मशरूत तौर पर पेंशन अदा किए जाने का मुतालिबा किया। इस मौके पर इस धरने में जिला नायब सदर गंगाधर, मुआविन सेक्रेटरी वी पद्मा, जिला कायदीन सुप्रिया, भारती, अल्ताफ व दीगर भी मौजूद थे। కార్యక్రమాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేయటం వల్ల దిగచ్చినటువంటి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని అమలు చేస్తుండు కానీ దాంట్లో అనేక నిబంధనలు పెట్టిండు. ముఖ్యంగా 2014 ఫిబ్రవరి 28 నాటికే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కలిగిన కార్మికులకు ఇస్తామని చెప్పేసి అన్నాడు. ఇది అన్యాయమైంది, దుర్మార్గమైంది. బీడీ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఆంక్షలు లేని జీవన భృతి ఇవ్వాలని చెప్పేసి యూనియన్ తరఫున మలిదశ ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేసిన చెవిటి వాని ముందు శంఖం ఊదినట్లు ఉన్నది తప్ప ఇంకా ఏమీ లేదు. దాంతో పాటు 2018లో ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు అయ్యా మీరు ఇస్తున్న 1000 రూపాయలు సరిపోవటం లేదు, కనీసం 2000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తే 2000 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పేసి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు తప్ప రానటువంటి వాళ్లకు 7 సంవత్సరాలు అయిపోతున్నా
ఇప్పటి వరకు ఇవ్వటం లేదు. దీని మీద మా యూనియన్ తరఫున నిరసన కార్యక్రమాలు చేసిన ఫలితంగా 2019 సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ నాడు 2014 యొక్క कट ऑफ डेट नु तीसीवेस। माह नवंबर के आसरा वज़ाइफ की रकम अकाउंट में न आने की वजह आसरा पेंशनर्स में बेचैनी व मायूसी। तमाम अफराद का वजीफा फौरन अकाउंट में मुंतकिल किया जाए। जिन अफराद के फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे उन्हें भी वजीफे की रकम दी जाए। आसरा पेंशनर्स का हुकूमत से मुतालबा। गुज़िश्ता माह नवंबर का आसरा वजीफा अभी तक अकाउंट में न आने से आसरा पेंशनर्स में बेचैनी देखी जा रही। मुतहदा जिले से वाबस्ता जुमला 49,332 अफराद को नए आसरा वजीफे जात की मंजूरी अमल में आई है। निजामाबाद अर्बन में 9,000 मुस्तहिकीन को आसरा वज़ाइफ की मंजूरी अमल में आई। इनमें से बाज़ ज़ईफ अफराद के फिंगरप्रिंट्स न आने से वजीफे के लिए आज भी ये अफराद दफातर के चक्कर काट रहे। आसरा पेंशनर्स का हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा है कि तमाम अफराद का वजीफा फौरी अकाउंट में मुंतकिल किया जाए। जिन अफराद के फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे इन्हें भी वजीफे की रकम जारी की जाए। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपकी अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज,
म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल मजीद आरिफ निजामाबादी की तहरीर करदा किताब मेरा शहर मेरे लोग की रस्म इजराई सीनियर कायद मजलिस व साबिक कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान के हाथों अमल में आए। इस मौके पर मजीद आरिफ को उनकी काविशों पर मुबारकबाद पेश की गई। रफत मोहम्मद खान सीनियर कायद मजलिस के हाथों मेरा शहर मेरे लोग किताब की रस्म इजराई अमल में आई। बरोज इतवार रफत मोहम्मद खान की रिहाइश गाह पर शानदार तकरीब में मजलिसी कॉर्पोरेटर्स के अलावा मोहम्मद अब्दुल शुक्र सदर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी डॉक्टर नाजिम अली मौजिफ प्रिंसिपल ने शिरकत की। इस मौके पर रफत मोहम्मद खान ने खिताब करते हुए कहा कि मजीद आरिफ निजामबादी ने इस किताब को तहरीर करते हुए अपने शहर और अपने लोग से मोहब्बत का सबूत दिया है। मजीद आरिफ को इनकी काविशों पर तमाम अफराद ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर अहमद, अब्दुल अली बागवान, एम ए गफूर मुकीम, मिर्जा अफसर बेग, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स के अलावा मौलाना अब्दुल खदीर हुस्सामी, डॉक्टर जामिर अली, खदीर दानिश, हाफिज शाकिर, एम ए मुकीद फारूकी, नुमाइंदा एतमाद निजामाबाद, रफीक शाही, सैयद उस्मान अली, एडिटर फिक्र जमहूरिया हफ्ताबाद, डॉक्टर रजी शुत्तारी शायर, सैयद यासीन अली, एडिटर अनवारे दक्कन हफ्ताबाद, मोहम्मद फयाज अली, सरफराज मोहम्मद खान, मोहम्मद अली, उमर फारूक, शेख वाजिद, यूनिक कार डेकोरेटर व दीगर भी मौजूद थे। बांसवाड़ा हल्के के तरक्याती कामों से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार बिला वजह नए मसाइल सामने लाते हुए अवाम को बहकाने में मशगूल बांसवाड़े को जिले में तब्दील किए जाने के लिए एक नया नाटक। बांसवाड़ा सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा हल्के में बीआरएस कायदीन ने सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर बांसवाड़ा सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बांसवाड़े को जिले में तब्दील कब किए जाना वो स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को इस बात का अच्छी तरह इल्म है। कुछ अपोजिशन लोगों के लिए एक वक्त गुजार मशगला बन गया है जिसका वो कभी भी बांसवाड़े को जिले में तब्दील करने का मुतालिबा कर रहे हैं। बांसवाड़ा हल्के के तरक्याती कामों के मुताल्लिक बात न करने वाले अपोजिशन को अवामी मसाइल इनकी जरूरियात के मुताल्लिक भी कुछ नहीं मालूम। अपोजिशन पार्टियां अपने मुफाद की खातिर अवाम को बहकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस मौके पर इनके हमरा बीआरएस कायदीन मोहन नायक, पी बालाकृष्णा, एजाज, राजशेखर, गोपाल रेड्डी, लिंगम, अलीमुद्दीन, बाबा, कलीम व दीगर भी मौजूद थे। మరి నీ కళ్ళ కనబడతలేదా? మరి ఏదో పబ్బం గడుపుకునే విధంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము హీరోలం అయిపోతాం, ఒక స్పీకర్ గారి గురించి మాట్లాడితే ఆ స్థాయి నాయకుల గురించి మాట్లాడితే మేము మీడియాలో వస్తామని చెప్పేసి మీ ఇష్ట రీతిలో మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరు జాగ్రత్త ఖబర్దార్ మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మీ స్థాయి మర్చి మా నాయకుడి పైన ఎలాంటి విమర్శలు చేస్తే మాత్రం ఊరుకునే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే మా నాయకుడు ఎప్పుడు మా అందరికి కూడా చెప్తా ఉంటాడు, మీరు క్రమశిక్షణతో ఉండాలి, ఎవరు ఏం మాట్లాడినా మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ప్రజలలో ఉండాలి, ప్రజలకు ఏం కావాలో అది చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్పేసి వారు చెప్తా ఉంటారు. కాబట్టి మేము ఇన్ని రోజుల వరకు సైలెంట్గా ఊరుకుంటా ఉన్నాం. మేము కూడా చూస్తూ ఊరుకునే పరిస్థితి లేదు. మరి ఇలా రాష్ట్రంలో మరి డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఎక్కడ లేని విధంగా ఈరోజు మరి రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు స్వయంగా వారు ఒక స్పీచ్ లో చెప్పడం జరిగింది. ఈ రోజు సీఎం గారు కాన్ఫరెన్స్ కంటే ఎక్కువ డబుల్ బెడ్రూమ్ మీ కాన్ఫరెన్స్ కి వచ్చినాయి. మరి దాని గురించి మాట్లాడరు. మరి ఎక్కడ లేని అభివృద్ధి ఈ రోజు ఎంసీహెచ్ మాతా శిశు ఆసుపత్రి మరి ఎక్కడ లేని విధంగా బాన్స్వాడ పట్టణంలో మరి జిల్లా కేంద్రంలో లేనటువంటి 100 పడకల ఆసుపత్రి బాన్స్వాడ పట్టణం ఉంది. దాని గురించి మాట్లాడరు. మరి ఇక్కడ ఎక్కడ లేని విధంగా అభివృద్ధి జిల్లా కేంద్రంలో లేనటువంటి మన నర్సింగ్ साफ शिफाफ माहौल, बराबरी, मसावी हुकूक की जिंदगी गुजारना अहम मकसद। इंसानी हुकूक वेदिका का इनेकाद जिला सदर गंगलू का बयान। बोधन के पीआरटीयू भवन में 2 तेलुगु रियासतों के 9वीं महासभा के पंफलेट को इंसानी हुकूक जिला सदर जी गंगलू
विकलांग, दलित, गिरिजन, माइनॉरिटी तबकों की क़यादत में पम्फलेट्स की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि निजामाबाद के प्रगति नगर मुनूर कापू कल्याणा मंडपम में इस महीने की 17-18 तारीख को इंसानी हुकूक वेदिका के मुतहदा जिलों के 9वीं महासभा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। इस प्रोग्राम में जिलों के मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें, तलबा तंजीमें, हर फिरके के कायदीन को हाजिर होते हुए कामयाब करने की अपील की गई। దాంట్లో బోధన్ సపరేట్ జిల్లా కావాలని చెప్పేసి మేము ఒక ప్రణాళిక పాస్ చేయడం జరిగింది. దాని కొరకు సోమవారం నుండి జిల్లా అంతవరకు మేము ఒక ప్రణాళికతో జిల్లా అంతవరకు కొట్లాడతామని చెప్పి ఈ పత్రికాముఖంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. బోధన్ భారతదేశ ఆధ్వర్యంలో ఎక్స్టెన్షన్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. అందరూ మెంబర్స్ కూడా హాజరై ఇందులో ప్రధాన ఏజెండా ఏంటంటే ప్రత్యేక బోధన జిల్లా కావాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈరోజు తీర్మానం చేయడం జరిగింది. సోమవారం నుండి మేము ఇప్పుడే ప్రణాళిక దాని కార్యాచరణ అన్నీ ఇప్పుడే ప్రకటించడం జరిగింది. సోమవారం నుంచి అడ్వకేట్లు అందరూ కూడా దఫాల వారీగా లిలే అండర్ స్ట్రైక్ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. జిల్లా ప్రకటించే వరకు, జిల్లా సాధించే వరకు న్యాయవాదులు ఈ పోరాటం కొనసాగిస్తారని చెప్పేసి ఈరోజు ఇన్నటువంటివి మా యొక్క బాడీ మీటింగ్లో తీర్మానం చేయడం జరిగింది. దీనికి బోధన్ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి ప్రజా సంఘాలు కానీ, వామపక్షాలు కానీ, అనేక జేఏసీలు అందరూ కూడాను మా యొక్క ఉద్యమానికి సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము ఈ వేదిక ద్వారా, ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా అందరికీ విన్నపం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా అడ్వకేట్లు కీలక పాత్ర పోషించడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन में 80 रोज से लापता नौजवान की मौत के खातियों को खुसूसी टास्क फोर्स के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। मकतूल के अफरादे खानदान को सीपी किया नगर आ चुका तयासुर। सॉफ्ट व कम्युनिकेशन स्किल्स के मुताबिक दिगल फाउंडेशन संस्था का इनेकाद, फाउंडर व सीपी की खातून पुलिस अमले में शौबेदारी। तालिबात के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरकारी जूनियर कॉलेजेस में एमसेट व नीट की खुसूसी कोचिंग दी जा रही। तलबा इस्तीफादा हासिल करे। सिलाइट बोर्ड ओहदेदार रघुराज। दरगाह हजरत कमर शाह बियाबानी अल मारूफ कंटेश्वर के सालाना उर्स का 14 दिसंबर से आगाज। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। ज्यादा से ज्यादा फ्यूज हासिल करें। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।